Good evening, guys. This is me, Asit Kumar Yadav. As we know, yesterday our chapter got completed. Now today we will start the notes of the chapter, that is reproductive health. And after completion of this note, we will move toward the exercises of this chapter. Now later we start the next chapter. So without wasting time, let us start the videos. And if you are new to my channel, please like my videos, share my videos, and subscribe my channel to be updated. That's all. Let's start. As I told earlier, our chapter got completed. Now today we'll start the notes of this chapter, that the revision note, that is chapter number 4, and the name of the chapter is the reproductive health. Now today we will start the notes of this chapter. When our notes got completed, then we will move towards the exercises, that whatever is question given in the last of the chapter, we will go through that exercises and I will provide you the suitable answers of that exercises. Now let us start today's videos. And this is the study material downloaded from the prescribed website from where I studied, and I am providing you these notes because this will helpful for you and you may study from this. This is very helpful and this helped me a lot, so I can give it to you. I am giving it to you, that's it's also help to you. That's all. Let's start. That written there, अकॉर्डिंग टू WHO के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. WHO को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको WHO को. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, WHO के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है, टोटल वेलबींग, यानी कि टोटल वेलबींग हो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल. वैसा व्यक्ति जो फिजिकल शारीरिक रूप से, इमोशनल नैतिक रूप से, बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक रूप से और सोशल यानी सामाजिक रूप से चारों मतलब जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए, चारों ऑल एक्सेप्ट होता है. अगर चारों पहलू से अगर वो क्या कहते हैं वेल बीइंग है तो वह रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाता है, ठीक. आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजी के बारे में देखते हैं. India was amongst the first country in the world to initiate to the program family planning initiated in 1951. भारत सबसे पहला कंट्री था वर्ल्ड का जिसने क्या शुरू किया था, फैमिली प्लानिंग शुरू किया था. किस साल शुरू किया था, 1951 में फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहले हमारे कंट्री भारत में शुरू हुआ था, ठीक. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी फॉर्म्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ. और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है सोसाइटी में वो क्या फॉर्म करता है, क्रूशियल पार्ट, जो कि जनरल हेल्थ के लिए चाहिए. इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज द RCH. in our country, that RCH is a program is run by our government that provide the reproduction related area currently in operation under the popular name RCH, that means the reproductive and child health care program. Now later we move on. Health and education of young people and marriageable and the age bearing during more mature stage of life important attributes to the reproductive health of the society. It means that the health and education, that means the स्वस्थ और education मतलब शिक्षा, स्वस्थ और शिक्षा जो होता है young people का, and marriage यानी that is the and the people of the age group that is in the marriageable age group between the age of the 18 and the 15 years of old in the both the male and female partner, that called the child bearing during more mature stage of life, that play an important attributes to the reproductive health of the society. Now later we move on. Measures taken by the government. What are the measures? Several measures that are taken by the government. We will discuss this थ्रू द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया. जैसे कि हम लोग ऑडियो वीडियो और विजुअल मीडिया, जैसे हम लोग प्रिंट मीडिया से देखते हैं, ऑडियो वीडियो का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. जैसे होता है कि टेलीविज़न देखते हैं हम लोग, रेडियो सुनते हैं, उस ऑडियो वीडियो विजुअल में बताया जाता है. और प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं. एवरी फैमिली मेम्बर्स क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस. इसका मतलब हम लोग जाने थे कि मतलब होता है कि फैमिली मेम्बर्स में जो भी हम लोग को बड़े होते हैं, जो हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सेक्स एजुकेशन कहा जाता है. सेक्स एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द स्कूल्स टू प्रोवाइड अवेयरनेस. और ये सेक्स एजुकेशन होता है उसको स्कूल यानी कि विद्यालय से में भी मतलब जागरूकता के लिए बताया जाना चाहिए. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स एक्सेट्रा. और जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यानी कि सही इन्फॉर्मेशन बताया जाना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. और एडोलसेंट जो कि एज ग्रुप होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है, जिसको एडोलसेंट कहा जाता है. और रिलेटेड चेंज यानी जो चेंज होता है उसके बारे में बताना चाहिए. सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. और सेफ़ और हाइजीनिक मतलब क्या
सुरक्षित है और क्या हाइजेनिक यानी कि खतरनाक है उसके बारे में बताना जाना चाहिए। और एसटीडीज़ के बारे में बताना चाहिए। एसटीडीज़ के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन किए थे। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। और ये एड्स के बारे में दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस क्या है और इसके बारे में देखते हैं। हम लोग इसके बारे में पूरा देख चुके हैं और एक बार फिर से हम लोग रिवीजन के लिए देख ले रहे हैं। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन डिफरेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमिनोटिक फ्लूइड। और एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस में बताया था जिसमें क्या होता था कि एमिनोटिक फ्लूइड जो फीटल सेल है, फीटल बेबी डेवलप कर रहा है, उसका एमिनोटिक फ्लूइड लेकर के उसका चेकअप किया जाता था, जिससे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता चलता था जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में है। जैसे कि it is also misused to check fetal sex determination based on chromosomal patterns in amniotic fluid surrounding the developing embryo। और इसका मिसयूज भी बहुत जगह किया जाने लगा, यानी कि फीमेल फर्टिसाइड करने में। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है फीमेल फोटल सेक्स का, उसमें फीमेल फर्टिसाइड यानी कि देखा जाता था कि यानी मतलब जो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, अगर गर्ल चाइल्ड को गर्भ में ही मार दिया जाता था उसको फीमेल फर्टिसाइड कहा जाता था और इस प्रोसेस के द्वारा मतलब किया जाता था, इसलिए इस प्रोसेस को बैंड कर दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जो होता है जनसंख्या का विस्फोट होता है उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और बर्थ कंट्रोल यानी कि कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाए इसके बारे में दिया गया है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपुल, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। और जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी यानी कि जैसे पीपुल लोग हम लोग मनुष्य लोग जी रहा है और उसमें इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ का बेटर लिविंग कंडीशन में बचाया जाना चाहिए। ठीक, एंड एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। और ये क्या रोल करता है, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट करता है जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भागीदारी है। फिर आगे देखते हैं रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, दैट इज़ द MAMR, दैट इज़ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और मतलब कि जो होता है डेथ रेट में बहुत कमी होने के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है जो कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है। और IMR जिसको कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज द मेन रिस्पॉन्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उससे भी मेन कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक, स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसे बचने के लिए क्या क्या मतलब स्टेप लिया जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसके कारण कि हम लोग बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सकता है। एजुकेटिंग पीपुल अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली। और पीपुल को एजुकेट करेंगे कि लार्ज फैमिली डिमेरिट्स, लार्ज फैमिली का मतलब डिमेरिट बताएंगे कि यानी क्या क्या उसका मतलब डिसएडवांटेज होता है। लार्ज फैमिली रहेगा तो ज़्यादा बच्चा रहेगा तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, ज़्यादा पढ़ाना लिखाना रहेगा, अच्छे से रहना रहेगा, ज़्यादा मतलब बताया जाएगा मतलब लार्ज फैमिली के बारे में डिमेरिट्स उसका डिसएडवांटेज बताएंगे, जिससे कि सब कुछ सोचे कि नहीं स्मॉल फैमिली इज़ द हैप्पी फैमिली। और जिससे कि दो स्मॉल फैमिली का प्लानिंग करें और आगे चलकर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कोई रोल प्ले ना करें। ठीक, आगे देखते हैं थर्ड नंबर में क्या दिया गया, इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ फीमेल एंड मेल। और जो इंक्रीजिंग यानी कि मेल और फीमेल ग्रुप जो होता है उसका मतलब मैरिजेबल एज ग्रुप का मतलब ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक, प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव, इंक्रीजिंग नहीं है डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ इंक्रीजिंग कर दिया है यानी गलत से मिस्टेक हो गया होगा। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रेन। और मतलब जो पेरेंट्स होता है यानी कि जो मतलब जो पेरेंट एज ग्रुप में है, पेरेंट बनने के मतलब एज ग्रुप में है, उनको सिखाया जाएगा कि आप या तो एक या एक से अधिक नहीं, या एक और या फिर 2 बच्चा करें, मतलब जिसके कारण कि ज़्यादा लार्ज फैमिली ना हो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कोई रोल प्ले ना करना पड़े। ठीक, आगे देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं जिसके कारण कि प्रिवेंटेड यानी कि प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होता है यानी कि जो अनचाहा प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि जो फीमेल पार्टनर नहीं चाह रही है कि वो प्रेग्नेंट हो और मतलब प्रेगनेंसी हो गई, उसको मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके उसको रुका जा सकता है। और मॉडिफाई यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रोल होता है यानी कि 28 डेज पर जो साइकिल होता है, 28 और 29 डेज पर जो साइकिल होता है उसको मतलब मॉडिफाई कर दिया जाता है, यानी कि इस साइकिल को यानी एक दिन बढ़ा दिया जाता है, एक दिन मतलब घटा दिया जाता है, ऐसा मतलब करके रोल प्ले किया जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड द्वारा यूज़ किया जाता है। देखते हैं आगे, एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली यानी कि सबको यूज़ कर सके अच्छे से, इजली अवेलेबल यानी सबके लिए अवेलेबल हो, इजली अवेलेबल बहुत आसानी से अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो यानी कि उसको मतलब फिर दोबारा जैसा था पहले वाला स्टेज में आ जा सके, नो साइड इफेक्ट कोई भी इसका साइड इफेक्ट ना हो, नो वे इंटरफेयर्स विथ सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। और इसका मतलब कोई मतलब जो कानून होता है ना सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट से कोई भी रिलेशन ना हो। ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जो कि प्राकृतिक और ट्रेडिशनल मेथड है, और बैरियर मेथड्स है, IUDs जिसको कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस UTERIN यूटेराइन डिवाइसेस हम लोग पढ़े थे।
फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और इंजेक्टेबल के बारे में पढ़े थे, और इम्प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, और सर्जिकल मेथड जो कि वास्कुलर और ट्यूबेटिकोटोमी था उसके बारे में भी पढ़े थे। अब देख लेते हैं नेचुरल मेथड में क्या क्या है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इट इंक्लूड्स, नेचुरल मेथड क्या है, जिसमें कि ऐसा मेथड है जिसके नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, चांसेस ऑफ यानी कि जो स्पर्म है और ये ओवम है इसको मतलब मिलाने का मतलब कोई मतलब मिलाया नहीं जाता जल्दी, मतलब इसमें कोशिश किया जाता है कि ये आपस में फ्यूज़ ना करें। ठीक, देखिए पहला स्टेप्स क्या है, जैसे कि पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। द कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। और जैसे क्या है ना 10 से 12 दिन यानी कि जो कहा जाता है, देखिए यहाँ लिखा गया है वाटिंग, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है उसमें 10 से लेकर के 17वां दिन के बीच तक कोई भी क्वाइटस यानी कोई भी कॉपुलेशन ना किया जाए, जिसमें मतलब क्या कहते हैं मतलब कॉपुलेशन को अवॉइड किया जाए जिससे कि प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। और इस पीरियड को क्या बोलते हैं, द डे फ्रॉम द 10 to the 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज द फर्टाइल फेज ऑफ द फीमेल पार्टनर दैट गॉट द प्रेगनेंसीज इन दिस पीरियड। नाउ सेकेंड मेथड इज द विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्ट्स। इसमें विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्ट्स है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल partner withdraw penis from vagina just before ejaculation to avoid insemination. In this method, withdrawal or coitus interrupts, male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. In this, it means that when the coitus is happening between the male and the male partner just withdraw his penis from the vagina, यानी कि मतलब क्या कहता है, यानी जो फीमेल पार्टनर है वो वेजाइना से अपना पेनिस निकाल लेते हैं जब मतलब इजैकुलेशन यानी कि जो द प्रोसेस ऑफ the removal of sperm from the testes towards the vaginal passage of the female partner, and just ejaculation is called the insemination, and before the ejaculations the male partner withdraw the penis from the vagina to avoid the insemination क्या होता है, जो मेल और फीमेल का जो ओवम और स्पर्म मिलता है उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है, और जो कि मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना में जाता है उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। And next is the C number, lactational amenorrhea, absence of menstruation after parturition and due to the intense milk feeding and no ovulation in this period, chances of fertilization is nil। और इस पीरियड में क्या होता है, लैक्टेशनल एमोनोरिया पीरियड में, जो कि ये पार्चुरेशन के बाद का पीरियड होता है जिसमें कि बेबी का मतलब जो मदर होती है और उनका जो फर्स्ट बेबी होता है वो मतलब मिल्क सकिंग यानी कि दूध पीते हैं, तो उस पीरियड में कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और जिसके कारण कि फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है, उसके बीच में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और बता दें कि ये मतलब मात्र 6 मंथ तक के लिए ही अवेलेबल है आफ्टर द पार्चुरेशन। आफ्टर द पार्चुरेशन द 6 month of the period is that period in which the menstruation does not occurs in the female partner, and in this method the chances of fertilization is nil. That means there is no chances of fertilization. Now next is the in barrier methods, ovum and sperm are prevented from physical meeting with the help of barriers. This includes, और नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जो ओवम और स्पर्म का है उसको मतलब फिजिकल मीटिंग से रोका जाता है, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ बैरियर के द्वारा। और बैरियर क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज द ए नंबर इज द कॉन्डोम्स यूज्ड बाय मेल, बैरियर मेड ऑफ रबर और लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर पेनिस और वेजाइना और सर्विक्स ऑफ फीमेल, इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडीज। और जो इसमें होता है जो कॉन्डोम्स, इसमें क्या 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 होता है जो कि मेल द्वारा यूज़ किया जाता है और फीमेल द्वारा भी इसको यूज़ किया जाता है। मेल द्वारा इसको यूज़ किया जाता है जो कि पेनिस को कवर करने के लिए, और फीमेल द्वारा यूज़ किया जाता है जो कि सर्विक्स को कवर करने के लिए। और इससे क्या मतलब जो एसटीडीज होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, कॉन्डोम फॉर द मेल एंड नेक्स्ट इज द diagram is the condom for the female that is injected in the vaginal passage of the female just before the coitus and to avoid the physical meeting of the sperm and the ovum. Now next is the diaphragm, cervical caps and vaults are barrier made up of rubber that is inserted into the female reproductive tract during coitus। और ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट होता है, ये बैरियर मेड किसके द्वारा मेड है, रबर से बना होता है, और ये बस फीमेल पार्टनर के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें इंसर्ट यानी लगाया जाता है, घुसाया जाता है, और जिसको कि क्वाइटस के ट्रैक ड्यूरिंग द क्वाइटस यानी कि जस्ट बिफोर द कॉपुलेशन इन विच द मेल एंड फीमेल पार्टनर कॉपुलेट विथ ईच अदर टू फॉर द ejaculation. That means the when the sperm got into the vagina of the female that got the fertilized, and just to avoid this we use मतलब female partner use diaphragm, cervical caps and valves to avoid the physical meeting of the sperm and the ovum.
Now next point is the spermicidal cells, jellies and foams are usually used along with those barrier to increase their contraceptive efficiency। और स्पर्मिसिडियल सेल क्रीम्स होता है और जेलीज होता है और जो फोम्स होता है उसको यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, इस बैरियर के द्वारा, इस सब बैरियर के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है जो कि contraceptive efficiency को बढ़ा देते हैं। ठीक, एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड के क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में देख लेते हैं। दे आर डिस्पोजेबल, और इसमें क्या है, जो डिस्पोजेबल यानी कि उसको एक बार यूज़ करके दोबारा उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसको डिस्पोज कर देते हैं यानी कि फेंकना पड़ता है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, और ये क्या है, मतलब एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हम लोग खुद से यूज़ कर सकते हैं, अपने से यूज़ कर सकते हैं। दे आर रीयूजेबल, और बहुत सारा जो होते हैं जो कि रीयूजेबल भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रिवेंट कंसेप्शंस बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, और जो क्या कहते हैं कंसेप्शन यानी कि जो चांसेस होते हैं मेल और फीमेल पार्टनर का ओवम और स्पर्म और ओवम का मीटिंग का, उसको मतलब बचाते हैं, और स्पर्म का एंट्री बताते हैं, मतलब स्पर्म जो एंट्री करता है ओवम में उसको फिजिकल मीटिंग से बचाया जा सकता है। और कल हम लोग शुरू करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। चलिए, आप लोग जो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उसको आप लोग एक बार रीडिंग करके आइएगा। कल से हम लोग शुरू करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। That's all, आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू आर न्यू माई चैनल, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल।